A lot has been happening around the world. If you think that it's only the Gaza war or the war of Israel and Lebanon, if you think that is the only news which you have to remember as a UPSC aspirant, well, you're wrong. The BRICS summit is around the corner. Just recently, the SCO summit concluded. And there are many things happening in and around the world, and very importantly, a lot is happening in the dark continent, the African continent. A very good morning, ladies and gentlemen. I am your educator. My name is Kuber Singh, and I teach IR, internal security, and even essay writing on Sleepy Classes YouTube channel. फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हम अफ्रीका के टुवर्ड्स चलेंगे. हम थोड़ा रोज की जो चर्चा है, लेबनान, इजराइल, ईरान, गाजा, कोरियन पेनिनसुला में बहुत कुछ हो रहा है, ब्रिक्स समिट आ रहा है, एससीओ समिट होके रखा है, बहुत कुछ हो रहा है इंडिया कनाडा के बीच में. लेकिन आज हम बात करेंगे मोजाम्बिक के बारे. मोजाम्बिक में इलेक्शंस हुए हैं. नाउ यू माइट से दैट सर व्हाट इज सो न्यू फॉर इंडिया, व्हाट इज सो न्यू फॉर अस इफ मोजाम्बिक में इलेक्शंस हुए हैं. इलेक्शंस तो दुनिया भर में होते रहते हैं. श्रीलंका में होके हटे हैं, मोजाम्बिक में होके हटे हैं, दुनिया भर में होते रहते हैं. बट इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक, this has implications for India, and with the new government, there's a new president elect in Mozambique. Let us also understand that how does this bode well for India, or how does this not bode well for India. Let's have a look at this lecture. Please stay with me till the end of the video. Now let's understand the geography of Mozambique. Mozambique एक coastal country है, resource rich country है, ओपनिंग अप राइट टू द इंडियन ओशन रीजन. एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है मोजाम्बिक चैनल. मोजाम्बिक चैनल एक ऑफन इग्नोर्ड और ओवरलुक्ड ग्लोबल मैरिटाइम चोक पॉइंट है. इसकी जो अहमियत है, इसकी जो कीमत है मोजाम्बिक चैनल की, जब से स्वेज कनाल की स्थापना हुई है, इस इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट की कीमत बहुत कम हो गई है. हैव अ लुक एट द मैप. ये मोजाम्बिक का मैप है. दिस इज मोजाम्बिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसके बारे हम डिस्कस करने वाले हैं विद इन मोजाम्बिक, दैट इज काबो देलगाडो. ये है आपका मोजाम्बिक चैनल, अ वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट ओपनिंग अप टू द इंडियन ओशन रीजन. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू द कैपिटल ऑफ मोजाम्बिक इज मापुतो. लेट मी ऑल्सो टेल यू इट टेक्स 3 days to reach the west coast of India. That's not a very long time if the journey is via ship. So via the Mozambique channel, if we have to go all the way up to the west coast of India to the Arabian Sea, it will take maximum 3 days. So that's not much of a time. So therefore, Indian Ocean region, the countries surrounding the Indian Ocean region becomes very important for India. Why? Because India lies at the heart of Indian Ocean region. India is the most preferred security partner in the Indian Ocean region, and Indian Navy has a strong dominance in the Indian Ocean region. Now, as I told you that the opening of the Suez Canal back in 1869, this reduced the significance of the Mozambique channel. However, why is Mozambique channel and why is Mozambique becoming the eye candy of countries like France, America, China, India once again? Because of the recent discovery of 100 trillion cubic feet of natural gas in the Rovuma basin, and the huge coal reserves deposited within the region. Now this is the Rovuma region. This is the Rovuma region. I'll also show you a map very shortly regarding the Rovuma basin, the Rovuma region. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस डिपॉजिट्स पाए गए हैं, कोल डिपॉजिट्स पाए गए हैं, और ये डिस्कवरी के कारण प्रोस्पेक्ट सामने आ रहे हैं कि इस गैस का रेवेन्यू, गैस को बेचने से कई सारा मुनाफा कमाया जा सकता है. अफ्रीका हैज ऑलवेज बिन अ रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका के लिए उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उसके लिए रिसोर्स वेल्थ नहीं, रिसोर्स कर्स बन के रहा है. Unfortunately, since October 2017, we are seeing an insurgency happening in Mozambique, specifically in the northern part of Mozambique, जहां पे आपका काबो देलगाडो रीजन आ जाता है. कई बार ना क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स में, मैच द फॉलोइंग, कि ये रीजन दिया गया है, 2-3 रीजन्स दिए गए हैं, ये कौन से कंट्री में आता है. 2022 का जो प्री का पेपर था यूपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है काबो देलगाडो से रिलेटेड. नाउ सिंस 2017 बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी नॉर्दर्न मोजाम्बिक में सिचुएशन बहुत डिटेरियोरेट हो रही है. नाउ द इंसर्जेंसी इज primarily because of the Islamist insurgency. Now there is a fight between the government and the Islamic insurgent group. Now what is the name of the Islamic insurgent group? The name is
Al-Shabaab. Al-Shabaab is the name of the Islamic insurgent group. Now, why is this Islamic insurgency rising in Mozambique? Now, this is a response to the grinding poverty, a deep sense of marginalization. The Muslim population, the local communities, the Muslim communities of this region, they are feeling the brunt that, look, you have hundreds and trillions of natural gas over here, you have oil reserves over here, you have all prospects of commerce opening up over here. Why is it that we people, why is it that the Muslim community is not getting adequate employment opportunities over there? So therefore, this is a cause of resentment which is rising within the people of Mozambique. Now have a look, this is the Cabo Delgado region. फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के लिए आप अपने मोड में आने वाले हैं और प्लेसेस इन न्यूज, अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रीलिम्स के लिए, तो प्लीज अभी इसको अटेंशन दें। बहुत छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। काबो दिलगादो कहां पे आता है? मोजाम्बिक में आता है। ये रीजन है काबो दिलगादो जो नदर्न पार्ट ऑफ मोजाम्बिक में आता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज है, मैं मार्क कर रहा हूं, पाल्मा, मुकिम्बुआ दा प्राया, पेम्बा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज हैं मोजाम्बिक में। यहां पे काफी हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज में इंसर्जेंट एक्टिविटीज देखने को ज्यादा मिल रही हैं। द कैप्चर ऑफ द पोर्ट सिटी मोकेम्बुआ दा प्राया, यहां पे आप देख सकते हैं मोकेम्बुआ दा प्राया, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। 2021 में अटैक्स हुए थे पल्मा में, पल्मा अगेन इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी। नाउ दिस इज द सेंटर, नाउ दिस रीजन, ये जो रीजन है यहाँ पे पल्मा और मुकम्बुआ दा प्राया, ये दिस इज द सेंटर ऑफ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट बाय अ फ्रेंच कंपनीज बाय द नेम ऑफ टोटल एनर्जीज। टोटल एनर्जीज की यहाँ पे $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है एलएनजी प्रोजेक्ट में इन दी अफूंगी पेनिनसुला। ये वन ऑफ द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स है इन द होल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे इस रीजन में ये पोर्ट सिटीज में पिछले 3 सालों से जो सिचुएशन ट्रबल्ड है, हैवी इन्वेस्टमेंट वहां पे लॉक्ड है, दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ मोजाम्बिक एंड देयरफॉर दिस इज अ सीरियस कंसर्न फॉर द वाइटल सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन एज वेल। इवन अमेरिकन जायंट, अमेरिकन पेट्रोकेमिकल कंपनीज एक्सॉन मोबिल का भी यहां पे पास में प्रोजेक्ट है जो कि एट प्रेजेंट ऑन होल्ड है। Mozambique में insurgency was born out of the resentment over the poverty indicators which were rising in the Cabo Delgado region. ये रीजन जो काबो दिलगादो रीजन है, यहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्स वेल्थ पाया जाता है और लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स, अफ्रीका का लार्जेस्ट गैस रिजर्व काबो दिलगादो रीजन में पाया जाता है। यहां पे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में रूबी, ग्रेफाइट के माइंस पाए जाते हैं जो कि ऑटोमेकर टेस्ला प्रोक्योर करता है। टेस्ला यहां से प्रोक्योर कर रहा है ग्रेफाइट को, रूबी को सिंस द लास्ट 3-4 years. Now the problem is the local communities, the exclusion of local communities, specifically the Muslim, Mawani and the Mauka communities, इनको यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से मार्जिनलाइज किया जा रहा है और इनको यहाँ पे इतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं एंड देयरफॉर इतनी भारी इन्वेस्टमेंट का फायदा $20 बिलियन का आपको मैंने टोटल एनर्जीज का बताया। एक्सॉन मोबिल ने भी यहां पे काफी इन्वेस्ट किया है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा यहां की लोकल कम्युनिटी को नहीं मिल रहा है। Now, what is the response? What has been the response of the Mozambique government? Let me also tell you, the Mozambique government, the previous president of Mozambique, उनका जो बेटा था वो एक बहुत बड़े करप्शन स्कैंडल में इन्वॉल्व था जिसका नाम है ट्यूना बॉन्ड्स। तो फिशिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ट्यूना जो कि एक फिश होती है, फिशिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए लगभग 2 to 2.5 बिलियन का फंड ईयर मार्क करा गया था फिशिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। लेकिन ये सारा का सारा पैसा अपेरेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक, उसके बेटे ने खा लिया। तो करप्शन स्कैंडल की बातें सामने आई हैं। ऑल इज नॉट वेरी गुड इन मोजाम्बिक, करप्शन स्कैंडल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं। इवन मोजाम्बिक की सरकार ने इस सिचुएशन को, इंसर्जेंसी को डील करने के लिए सिचुएशन को और मिलिटराइज कर दिया है। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेल नोन टू अस, द प्रेजेंस ऑफ हेवी एंड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मेन ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। नाउ देयरफॉर अभी मोजाम्बिक की जो सरकार की अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच ये होनी चाहिए कि उनको शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए
इतना ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों पे ही एम्फसाइज करना चाहिए। जो रूट कॉजेज हैं, पावर्टी है, डीप इनइक्वालिटी है, इस पे फोकस करने की बहुत रिक्वायरमेंट है मोजाम्बिक की गवर्नमेंट की। अभी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है मोजाम्बिक के, उनका नाम क्या है? डेनियल चेपो। उनकी आपको फोटो दिखा देता हूं। डेनियल चेपो 47 ईयर ओल्ड पॉलिटिशियन है, गवर्नर रह चुके हैं ऑफ इनहम्बेन प्रोविंस ऑफ मोजाम्बिक फॉर द लास्ट 8 ईयर्स। इनको आने वाले टाइम में बहुत उभरता सितारा माना जा रहा है पॉलिटिक्स में इन मोजाम्बिक। ये पहले एक रेडियो जॉकी रह चुके हैं, एक लॉ लेक्चरर रह चुके हैं और नेशनल पॉलिटिक्स में एक न्यू कमर है। तो बहुत सारी उम्मीदें इन पे बिठाई गई हैं डेनियल चेपो पे कि इनके मार्गदर्शिता के चलते और इनके गाइडेंस के चलते मोजाम्बिक में सुधार आ पाएगा। अभी जो नई सरकार है मोजाम्बिक की, वहां पे बहुत ज्यादा अभी रिक्वायरमेंट है आर्मी रिफॉर्म्स के लिए। अगर तो सिक्योरिटी सिचुएशन को बेटर करना है, मोजाम्बिक में जो इंसर्जेंसी सिचुएशन बढ़ रही है, वहां पे भी 3-4 देश, रवांडा है, साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, इन 3-4 देशों की आर्मी यहां पे काम कर रही है इंसर्जेंसी को वाइप आउट करने के लिए। साउथ अफ्रीकन डेवलपिंग कम्युनिटी SADC इज अ ग्रुपिंग ऑफ 4 or 5 countries within the South African region। ये अभी मोबिलाइज कर रहे हैं अपनी आर्मीज को टू फाइट द इंसर्जेंसी। लेकिन जब तक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक इंसर्जेंसी इंप्रूव नहीं होगी। नाउ जाने से पहले हम ये समझें कि इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मोजाम्बिक इतना दूर है, इंडिया के साथ क्या लिंक है? मोजाम्बिक का लिंक है एनर्जी सिक्योरिटी का। भारत का जो क्वेस्ट है, भारत की जो डिज़ायर है अपने रिसोर्स और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, रिसोर्सेज डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपनी डिपेंडेंसी मिडल ईस्ट पे कम करने के लिए, इन द वेक ऑफ द वोलेटिलिटी हैपनिंग इन मिडल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, तो LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक प्राइमरी ड्राइवर है ऑफ इंडियाज ग्रोइंग एंगेजमेंट विद कंट्रीज लाइक मोजाम्बिक। तो भारत अभी LNG जो सोर्स कर रहा है मिडल ईस्ट से, वो अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी मिडल ईस्ट पे इन द वेक ऑफ वोलेटिलिटी मिडल ईस्ट कम करना चाहता है और ये LNG प्रोक्योर करना चाहता है मोजाम्बिक से। मोजाम्बिक की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है along the Indian Ocean and the fact that it takes only a 3-day journey from India, this makes Mozambique a very ideal candidate to meet India's growing fuel needs। 3 PSUs led by ONGC विदेश लिमिटेड, इनका 30% स्टेक है इन द रोवुमा ऑफशोर एरिया 1 प्रोजेक्ट। लेट मी शो यू। ये जो है आपका रोवुमा ऑफशोर एरिया 1 प्रोजेक्ट है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्टेड हैं और इन्वेस्टमेंट भारत ने भी लगभग 20 बिलियन डॉलर की यहाँ पे करी है। तो भारत की सिंगेस्ट लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में। ऑलरेडी 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट टोटल एनर्जीज ने करी है, एक्सॉन मोबिल ने भी करी है, ONGC विदेश लिमिटेड ने भी 20 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी है। एंड दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका। सो रिपोर्ट्स अभी मीडिया में ये इंडिकेट करती हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो कि अभी रुका हुआ था बिकॉज ऑफ द इंसर्जेंसी, ये प्रोजेक्ट अब फिर से रिज्यूम होगा, ऑपरेशंस यहाँ पे रिज्यूम होंगे बिकॉज एक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट डेनियल चेपो आए हैं यहाँ पे मोजाम्बिक में और इन्होंने क्लियरली स्टेट करा है, अपनी इंटेंशन बताई है कि वो साइमल्टेनियसली काम करेंगे मोजाम्बिक के एनर्जी सेक्टर को ग्रो करने में भी और साथ के साथ टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी को काबो दिलगादो रीजन में भी कम करने का वो प्रयत्न करेंगे। दोस्तों जाने से पहले आपको बता दूं, हमारी यूपीएससी की प्रीलिम टेस्ट सीरीज है 3100 क्वेश्चंस, ऑल मेड एंड क्यूरेटेड by all of us, by the teachers, by your mentors. There is no outsourced candidate, there is no selected candidate, there is no outsourced content writer making these questions. It is all made by us. Let us score 120 plus in prelims 2025। 5500 की ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है और साथ के साथ यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक और एकेडमिक मेंटरशिप भी हमारे यानी कि स्लीपी क्लासेस के मेंटर्स के द्वारा प्रोवाइडेड है। टोल फ्री नंबर पे कॉल जरूर करना इस कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए। आई विल सी यू वेरी सून इन वन ऑफ द वीडियोस। थैंक यू सो मच।